जिनको लग रहा है कि काला पत्थर है उनको समझ में आ जाएगी चीज़ कि काला पत्थर से टोटली डिफरेंट फिल्म है। Usually it always comes out, who do you see as that one person who will go alone and do something and come back for India? It's Akshay Kumar. There's nobody else except Akshay sir whose name comes out. Hi guys, this is Ankita. You're tuned into peepingmoon.com and today we have with us Mission Raniganj director Tenu Desai and Deepshika Deshmukh, the producer. तो थोड़ा सा चलते हैं और फिल्म की डिस्कशन करते हैं. This is for both of you, the question. During the production of Mission Raniganj, was there a thought that you have to make this film better or somewhat different than Kala Patthar? Because probably that's the only film which has been made in India on any kind of mining incident per se. दीपशिका आप बताइए। Well, I think I'm very honored because it's one of the films that have gone down in history as the top 10 films of, you know, that entire century that we have worked for. I think the thought was to recreate the exact same incident in Raniganj, which happened in 1989. It was, sort of spearheaded by a very strong person. It has, India is synonymous to innovations. India is synonymous to heroes like that, and there are so many of them whose story hasn't come to life. And I think for us, it was very important to recreate the mission exactly how it was, keeping the look, the topography, the aesthetics in mind of exactly how it happened over there. And yes, Kala Patthar is the only film that while making we said कि ये एक ही पिक्चर है जो माइनिंग पे बनी है और कोल्स पे बनी है. But the team did their own research. जैसे कि हमारी जो production team है, the designing team, they went down to Raniganj. They literally mapped the entire mine. They took stencils of the entire mine and they brought it back. And then we recreated that on a set where we wanted, Tinu ji was very, very clear that I want every, the texture of the mine to be exactly of how it was. Unfortunately, you can't shoot in the mines itself because of safety issues. So we had to recreate an entire replica which was made with stencils. We have a beautiful video which we're going to be, releasing soon of exactly how that was made. From the water to the lighting, there were times where we could have taken a cinematic liberty in sort of experiencing it. But I think he was so particular. Tinuji said that even the light of how much light the miners had on their hats was, kept in check. So I think it's been an absolute delight for us at Pooja Entertainment to be working with him because he's so detailed and so into everything. It made life a lot easier for us. I don't know about the production design team because he was after that case. जब पहली बार हमने कहानी लिखी थी कई लोग ने बोला अरे ये तो काला पत्थर है, बट जिसको कहानी नहीं पता है वो काला पत्थर ही बोले. पंजाब में हर फिल्म बनने वाली दिलवाले दुल्हनिया नहीं होती है. Exactly, and this incident is different. तो हाँ, बैकड्रॉप सेम है, डेफिनेटली बैकड्रॉप सेम है, बट काला पत्थर फिल्म भी कल्ट फिल्म है अपने आप में. मुझे काला पत्थर याद है फॉर अमित जी एंड शत्रु जी की इक्वेशन के लिए. मुझे काला पत्थर याद है परवीन भाभी और शशि कपूर के लिए, है ना, राखी जी के लिए. वो सीन सारे याद है. बट ये कहानी अलग थी क्योंकि रियल इंसिडेंट हुआ था और एक आम आदमी ने कैसे 65 मजदूरों को बचाया था अगेंस्ट ऑल ऑड्स. तो वो मेरे लिए एक्साइटमेंट थी. और वर्ल्ड जब लोग फिल्म देखेंगे तो जिनको लग रहा है कि काला पत्थर है उनको समझ में आ जाएगी चीज़ कि काला पत्थर से टोटली डिफरेंट फिल्म है, इंक्लूडिंग द वर्ल्ड जो क्रिएट किया हुआ है, जो कहानी तो 100% रियल, जो हम उससे हम इंस्पायर है चीज़ के लेकर. तो ये टोटली अलग है. तो मुझे कहीं भी वो नहीं थी, ना मेरे दिमाग में चल रही थी वाइल शूटिंग वाइल प्रेप कि नहीं मुझे काला पत्थर से अलग करना है, क्योंकि कभी मेरे दिमाग में था ही नहीं ऐसा. हाँ, लोग बोलते थे मैंने ठीक है यार चल आप देख लो, है ना, आपको पता चल जाएगा. अगर काला पत्थर ही होती तो वाशु जी, दीपशिका एंड जैकी फिल्में नहीं बनाते, ना अक्षय सर फिल्म करते. तो डेफिनेटली अलग फिल्म है. गिल साहब के रोल के लिए फिर अक्षय क्यों? जेन्युइनली आई मीन ऑफ कोर्स आपका रुस्तम और उनका उसके लिए नेशनल अवार्ड, दैट्स हैज बीन अ ब्यूटीफुल एसोसिएशन, बट व्हाई पर्टिकुलरली अक्षय? I think when you
when the audience sees Akshay Kumar, they somehow, I mean, we've done so many deep stick analysis. You know, when they see him, they feel like he's that one person who can do a lot and save people and be that unsung hero. You know, that goes with him as a personality. आप किसी से भी पूछिए, you know, हम लोगों ने कितने सारे surveys भी जब किए हैं, usually it always comes out, who do you see as that one person who will go alone and do something and come back for India? It's Akshay Kumar. There's nobody else except Akshay sir whose name comes out. For us, like I feel like, you know, I like get you that. agree, right? I agree. So you know, when you think कि ये mission पे कौन कर सकता है या ऐसे कौन कर सकता है, his name just, he beautifully just fits in. And of course Akshay sir loves the script. Yeah. Tinu ji and him have been working on the script for very long. Akshay sir has spoken to Gil Saab himself when he was alive. आपके पास ये कहानी कैसे आई, आपने कैसे ढूंढा और फिर आपने अक्षय को कैसे जोड़ा हाँ उस जी, कहानी हाँ। से? फर्स्ट ऑफ ऑल रुस्तम की रिलीज़ के बाद अराउंड अक्टूबर होगा, सब्जेक्ट ढूंढ ही रहा था मैं कि कोई अच्छे सब्जेक्ट आ जाए। हाँ, ऐसा नहीं था कि मैं कोई रियल इंसिडेंट ढूंढ रहा था, मैं सब्जेक्ट ढूंढ रहा था। एंड फॉर्चुनेटली दीपक किंगरानी जो इस फिल्म के स्टोरी राइटर है और डायलॉग राइटर है, जिन्होंने एक बंदा लिखी है मनोज जी की, स्पेशल ऑफ जी लिखी हुई है, तो वो मुझसे मिले और उन्होंने बोला कि ये एक आइडिया है। ओके, तो मैंने बोला आइडिया तो अच्छा है, बोला और क्या है, तो रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि आइडिया मुझे अच्छा लगा। हाँ भाई, एक रियल कहानी है। एक सिख सरदार जी ने 65 मजदूरों को बचाया, सबको निकालने के बाद खुद बाहर निकला, अपने आप में एक हीरो वाली बड़ी कहानी है। मैंने इसके अलावा क्या क्या हुआ है ना। तो फिर हमने जैसे रिसर्च शुरू की, विपुल के रावल जो मेरे स्क्रीन पे राइटर है, जिन्होंने रुस्तम लिखी थी, वो भी इन्वॉल्व हुए। तो हमने जब रिसर्च शुरू की, पहले तो गिल साहब को ढूंढा कि जब हमने गिल साहब को ढूंढने की कोशिश की कि गिल साहब है मतलब कहाँ पर है, जिनसे बात करनी है, परमिशन लेनी पड़ेगी राइट साहब के Exactly, of ऊपर। course. अगर मुझे आपसे इंस्पायर होकर मैं फिल्म बनाने जा और रहा आपकी हूँ ज़िंदगी तो आपका कैसे एक्सपीरियंस क्या है, सारी चीज़। तो फिर गिल साहब को ढूंढा, उनका नंबर मिला, फ़ोन लगाया, मैंने बात की, मैंने बताया कि सर, इंट्रोड्यूस किया मैंने कि सर आप फिल्म देखते हो, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैं 4 महीने पहले एक फ़िल्म बनाई है, तो अगर आपने देखी हो तो मैं आपकी जर्नी के ऊपर ये जो इंसिडेंट हुआ मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ, आपकी परमिशन चाहिए। बोले बेटा ले लो। बोले पक्का जी? बोले जी। तो बोले सर मैं आपको एक NOC भेजता हूँ, प्लीज़ आप मुझे साइन करें। बोले बेटा कभी भी कर लो। नेक्स्ट महीने हम लोग पहुँच गए, फिर बैठ के पूरा रिसर्च किया, पूरी उनसे समझने की कोशिश की वो 3 दिन कैसे गुजरे उनके। जो मैं बैठा ना उनके साथ और वो जो बता रहे थे, आप बोलो ना अक्षय सर क्यों, मुझे वो झलक दिख रही थी You could imagine him तब कि हाँ कि वो जो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर था, उनके बात करने का तरीका था, है ना, तो मुझे वो दिख रहा था। ओके, एंड अगेन एक सिख एंड अक्षय सर, वो कॉम्बिनेशन से बड़ा कॉम्बिनेशन बहुत नहीं है, बढ़िया है ना? कॉम्बिनेशन है। और जब मैं उनसे बात कर रहा था सारी चीज़ें, तो मुझे लग रही थी कि झलक वही है। हाँ, अभी ये है कि अक्षय सर को कितना पसंद आएगा ये सब्जेक्ट, वो चैलेंजिंग है कि चलो मुझे तो, मैं एक्साइट हो रहा हूँ, ओके, है ना, मेरे राइटर एक्साइट हो रहे हैं, अक्षय सर को ऐसा तो नहीं लगेगा कि भाई अभी रुस्तम की अभी तू दूसरा एक लेकर आया, फिर एक हीरो है आ ना, गया, कि और एक larger चीज़ than life लेकर। hero। बट फॉर्चुनेटली जब मैंने उनको ये बताई चीज़ तो बहुत एक्साइटेड हो गए। उन्होंने बोला नहीं, ये कहानी पर्दे पे आनी चाहिए। और सुनने के बाद तुरंत उन्होंने कहा कि मुझे गिल साहब से बात करनी है। मैंने उनका फेस टाइम कराया, आधे घंटे बात की उन्होंने। मैंने उन्हें कहा 5-10 मिनट बात होगी, है ना, जिस तरह से अक्षय सर का स्केड्यूल टाइट रहता है। बट उन्होंने आधे घंटे बात की और 2 पंजाबी बात कर रहे थे। मुझे लग रहा था 6 साल से ये लोग एक दूसरे को जानते हैं, है ना, मैं पहली बार उनसे बात कर रहा हूँ। तो चीज़ मैंने बोला राइट ट्रैक पे हूँ मैं। तो इस तरह से अक्षय सर की चीज़ हुई है। मैं मान सकती हूँ अक्षय और उनका एक फुल पंजाबी कॉन्वर्सेशन चल रहा मतलब दादी तक बात चली गई थी। गिल साहब दादी की बात कर रहे थे अक्षय सर के, तो मतलब उस फैमिली वाली सारी बात चल रही थी। मैं और अक्षय सर भी इतनी क्यूरियसली पूछे कि आपने कैसे कर दिया, या आपने कैसे डिसीजन लिया था ये सब। बोले सच में ऐसा हुआ था, आपने ऐसे ऐसे कैसे कर दिया, कैसे सोचा आपने। तो ये जो क्यूरियोसिटी थी ना अक्षय सर की, वो दिख रही थी कि स्क्रिप्ट सुनने के बाद वो सारे सवाल पूछ रहे थे। उनके बच्चों ने, उनकी फैमिली ने अभी ये फिल्म देखी है?
नहीं फिल्म देखेगी तुरंत, लेकिन हाँ टीजर ट्रेलर जितना भी शूट के टाइम भी आते बहुत जैसे अच्छा उन फीडबैक लोग काफी मैं काफी स्टेटमेंट्स पढ़ रही हूँ they've कि been a मैं- part of हाँ, the journey जर्नी तो throughout. थ्रू आउट जैसे मेरे लिए वो फैमिली है, मेरे लिए वो वक्त बिताया तो मैं जब भी अमृतसर जाता हूँ, डैडी जी भी जब थे 2016 से मैं उनके साथ कनेक्ट हूँ, 16 17 18 19 जब तक वो थे, मैं जब भी घर पे जाता था मैं उनके साथ घर पे रहता था, मैं होटल में नहीं रहता था। मैं फिर वो 6 दिन रहूँ, 2 दिन रहूँ या 10 दिन रहूँ, मैं उनके साथ घर पे रहता था। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे निर्दोष गिल जो उनकी वाइफ है मम्मी जी, जब मैं उनसे बात करता था और जब हीरोइन की बात आई कि कौन हीरोइन, ओके हीरोइन किसको लिया जाए, तो बहुत सारे नाम आते हैं, है ना, ये सारी चीज़। तो उसमें मुझे झलक दिखती थी परिणीति की, कि उनका जो बोलने का तरीका था, उनका मजाक करने का तरीका था, जो उनका ब्रेव नेचर था, है ना, पंजाबन औरत मतलब एक चीज़ है कि नहीं मेरा पति नीचे गया है, मेरे को कोई डर नहीं है, नहीं जाते तो प्रॉब्लम है मुझे, नीचे गए वो मेरे लिए वो है, Exactly. है ना। जैसे हमारी फिल्म में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि वो मेरे पति बाद में है, पहले एक माइनर है। Minor. वो बहुत बड़ी सोच है, वो बहुत बड़ी सोच है, एक वाइफ का ये सोच होना, इससे हस्बैंड और निडर हो जाते हैं। तो जब ये बात हुई, मैंने दीपशिका वाशु जी से बोला कि परिणीति, अक्षय सर बोला, अक्षय सर ने बोला कि वेरी गुड, फिर अक्षय सर ने And अक्षय परिणीति आई थिंक तब तक केसरी कर चुके थे। तो वो जो सारी जो चीज़ हुई, परिणीति को भी सुना, तो परिणीति ने सुन के तुरंत यही बोला कि मुझे इस फिल्म का पार्ट होना है। तो आई थिंक सबकी एनर्जी वही थी, अक्षय सर से लेके पूजा फिल्म, वाशु जी, दीपशिका, धीरज, जैकी, उन सबकी एनर्जी वही थी कि नहीं ये फिल्म बनानी चाहिए, ये फिल्म पर्दे पे आनी चाहिए, लोगों को दिखनी चाहिए कहानी। That's lovely. ये फिल्म आपने कब खत्म किया? आई थिंक परिणीति की शादी का न्यूज़ इतना बड़ा हो गया था कि आई वाज आस्किंग, मैं सर से ही पूछूंगी कि उनकी शादी के बीच में क्या हम फिल्म खत्म So I कर रहे थे? think picture तो 2-3 महीने पहले खत्म हो चुकी थी, but I must say that just before she flew for the wedding, She did the first poster. Yeah, she did. No, she had interviews. You know, the BTS The interviews BTS and everything that we do, call to action bites and everything. And I'm so proud of her. My God, it's amazing because she came, she finished all her commitments, she off. finished everything, and then she flew out. It's brilliant. Yeah, I remember. I think yours was the only thing I saw her, and the next thing is she's on the airport, and Yeah. I'm like, No, but that's commendable. It's absolutely fantastic. I think it's so important to have females who, you know, can manage it all Manage- and I take think care of women it. I can think manage it yes, women really can. can. Lipsika, tell me something. Pooja Entertainment has got, I think, two of the biggest action stars on their, I should say, roster. Akshay and Tiger and Gunpath. We saw the teaser for it. You have such a fantastic lineup of films, be it Mere Husband Ki Biwi, Bade Miyan Chote Miyan, Hero Number 1 also, I guess you guys are planning We have an under production. and under production. How does it feel to run the show this way? I mean, how you and Jackie also distribute work, because there is so much exciting philanthropic films So I from your think banner. we creatively decide who's handling what and take that forward. We come together every evening, whether it's Dad, Jackie, me. We're creatively brainstorming. Everyone's informed of what's happening. So there's different aspects that each one leads, and I think we're humbly. It's very gratifying to have such big actors say yes to our scripts. We're really excited to have some really good directors on board. You know, Tinuji, he's absolutely brilliant in the genre that we've picked. There's Vikas, who's doing Ganpath. You know, there's Ali Abbas, there's Mudassar, there's Jagan sir. So I think we're very lucky to have extremely amazing directors on board who are the captains of these ships that are sailing out. And it's a very exciting time for us, and we're very lucky that the actors have said yes. I think it's the content that talks. It depends on what you bring to the screen. It depends on how you showcase it, how you film it, what is your output. So I think as a studio, we're looking at sort of servicing different sort of content, mass content-driven films. So we're doing sort of a little bit of everything so that the audience gets everything that they would want. So yeah, so as a studio, I think this is what Pooja Entertainment stands for.
and I think there are exciting times ahead considering Thank you, thank you, theatres thank you, are thank you. finally, I would say, the theatrical experiences, if I can say, is finally back. Thank you so much. Thank you for so doing much. this. Thank you so Thank you much. for having me. Thank you.